شروع؟ بتائیں ہو گیا ریکارڈنگ شروع؟ ہاں سر ہو گیا. ہو گیا ہے. ہاں سر ہو گیا. ہو گیا ہے. ٹھیک ہے. تو رکبہ ابراہیم الحصانہ، ابراہیم جو ہے حصان پر گھوڑے پر سوار ہوا. تو ہمارا پورا کوشچن، سامنے والا اگر یہ جملہ بولے گا تو ہمیں پوری بات سمجھ میں آ جاتی ہے اور کسی بھی طریقے کا کوئی ڈاؤٹ ہمارے ذہن میں نہیں رہتا ہے. لیکن اگر میں بولوں جیسے جو مرکب ناقص جو ہوتے ہیں، جملہ ناقصہ کی جو قسمیں ہوتی ہیں جس میں سے آپ کا ایک مرکب توصیفی ہے یعنی موصوف صفت جو آتا ہے، تو اگر کوئی وہ بولے گا کہ ایک خوبصورت آدمی، ایک خوبصورت آدمی، یا کہے گا الرجل الصالح، نیک آدمی، نیک آدمی، اگر کوئی بولتا رہے تو ہمیں کوئی بات سمجھ میں آتی نہیں ہے، کوئی خبر ملتی نہیں ہے. تو جملہ مفیدہ وہ ہوتا ہے جو پوری بات کا فائدہ دیتا ہے، پوری بات کی خبر دیتا ہے کہ اس کے بعد کوئی سوال بچتا نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور جو جملہ ناقصہ ہوتے ہیں ان میں سے ایک مرکب توصیفی ہے، اسی طریقے سے مرکب اضافی مضاف مضاف الیہ کی ترکیب ہے جو آپ کا اس میں آتا ہے، اسی طریقے سے ایک ترکیب اعدادی آتا ہے. ٹھیک ہے، اعدادی جو کہ سنکھیا ہوتی ہیں، جو کہ آپ کی سنکھیائیں نمبرز ہوتے ہیں. جیسے کسی نے کہا 11 11، یا اسی طریقے سے کسی نے 100 بول دیا، کسی نے 50 بول دیا، کسی نے 60 بول دیا. ٹھیک ہے. تو اس طریقے سے جو نمبرز ہیں، اعداد ہیں، یہ بھی آپ کا جو ہے دو سے مل کر بنتے ہیں. ترکیب تو ہوتی ہے لیکن یہ جملہ مفیدہ نہیں ہوتے ہیں، تام نہیں ہوتے ہیں. اس طریقے سے ایک آئی ہے مرکب بنائی، جس کو ہم نے دیکھا تھا مثال کے طور پہ جیسے بالا بکا، اور اسی طریقے سے مادی کرب. یہ بھی دو سے مل کر بنتے ہیں لیکن ان سے کوئی خبر ہمیں معلوم نہیں ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اب دیکھیں اس کتاب کے اندر کافی ایزی ٹاپکس لیے ہیں انہوں نے، بہت ہارڈ یا مشکل ٹاپک نہیں ہے، لیکن انشاءاللہ ہم چیزوں کو وہاں سے بھی کچھ نہ کچھ سیکھنے کی کوشش کریں گے اور ہم کچھ چیزوں کو جاننے کی کوشش کریں گے. دیکھیں میں نے جو آپ سے فیڈ بیک مانگا تھا، الحمدللہ چیزیں پتہ چلی ہیں، کافی چیزیں پتہ چلی ہیں. پہلی چیز یہ پتہ چلی ہے کہ جو میں سمجھ رہا تھا کہ یہاں پر ایڈوانس بچے ہیں، بالکل ایڈوانس بچے ہیں، نو ڈاؤٹ ایڈوانس بچے ہیں، لیکن یہاں پر وہ بچے بھی ہیں جو بہت نیچے ہیں. ٹھیک ہے، بہت ہی زیادہ نیچے ہیں، بہت ہی زیادہ بیسک کی ان کو ضرورت ہے. تو تھوڑا سا دھیما سلو چلنے کی کوشش کریں گے تاکہ ان بچوں کے بھی کنسیپٹ کچھ نہ کچھ کلیئر ہو سکیں. ٹھیک ہے. اور اسی طریقے سے ایک بات دوسری مجھے پتہ چلی ہے، وہ انشاءاللہ اس کو نہیں بتاتے لیکن اس کا ہم خیال کرنے کی کوشش کریں گے. ٹھیک ہے. یہاں پر اجزاء الجملہ کی انہوں نے بیات کی ہے کہ اجزاء الجملہ، اب جو ڈیٹیل انہوں نے کی ہے اس کی طرف ہم نہیں جائیں گے، بلکہ انہوں نے کیا ڈیٹیل کی ہے، یہی ڈیٹیل کی ہے کہ اسم ہوتا ہے اور اسی طریقے سے اور اسی طریقے سے حرف ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ اسم ہوتا ہے، فعل ہوتا ہے، حرف ہوتا ہے. اس کی طرف ہم لے کے آپ یہاں پر ہے پہلا جو ہے، پہلا والا جو ہے اس کی ترکیب کریں گے. شروع سے نام لوں گا یہاں پر آصف. آصف آپ پڑھیں گے اس کو، رکبہ ابراہیم الحصانہ، اس کی ترکیب آپ کریں گے. ترجمہ کر کے اس کی ترکیب جلدی سے کر دیجئے، کس طریقے سے ترکیب کرتے ہیں. چلیں کوئی بھی کریں پھر. ٹھیک ہے، کوئی بھی کریں اس کی ترکیب. رکبہ ابراہیم الحصانہ. رکبہ فعل، ابراہیم فاعل، الحصانہ مفعول. ابراہیم rode the horse. جی ہاں ترکیب کریں اس کی. فعل فاعل مفعول. جی تو رکبہ فعل ہے اور ابراہیم جو ہے فاعل ہے. ٹھیک ہے، فعل ہے، ابراہیم جو ہے فاعل ہے اور الحصانہ مفعول ہے. فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. ٹھیک ہے، اس سے بولتے ہیں فعل اپنے فاعل اور اسی طریقے سے مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا، جس کو ہم نے کیا بولا، رکب ابراہیم الحصانہ. رکبہ ابراہیم الحصانہ. پھر اس کے بعد ایک جملہ اٹھاؤں گا یہاں سے اور اس کو آپ کریں گے 7ویں نمبر پہ جو ہے تجری السفینہ علی الماء. اس کی ترکیب کوئی بندہ کرے گا، تجری السفینہ علی الماء. اس کی ترکیب کر دیں، جلدی سے ترجمہ کر دیں اور اس کے بعد اس کی ترکیب کریں. تجری السفینہ علی الماء. تجری فعل، السفینہ فاعل، اعلی حرف جار، الماء مجرور. جار اپنے مجرور سے مل کر مفعول.
नहीं, जार फेल मजरूर अपने से मिलकर मफूल क्यों होगा? हाँ। जार मजरूर से मिलकर मुताल्लिक होता है, तो मुतालिक मुताल्लिक हुआ होता है। तो मुताल्लिक। मुताल्लिक किसके होता है? मफूल मफूल बी जी, का मुताल्लिक किसके होता है? फेल का होता है। फेल फेल का फेल। फेल। जी जी, एक भाई साहब का माइक थोड़ा ज्यादा खराब है, वो अपना बंद कर लें। कोई भाई साहब जो है उनके ज्यादा ही शोर करता है। तो तजरी सफीनतु अलल माई, मैं करता हूँ, सारे बंद कर लें अभी। तजरी सफीनतु अलल माई, कश्ती चलती है, जरा यजरी माने चलना, जरा यजरी माने चलना, कश्ती चलती है पानी पर। तो तजरी चूंकि फाइल इसका जाहिर है, सामने इसको फाइल जाहिर बोलते हैं, इसकी वजह से फिर फेल में हम कोई जमीर नहीं मानते हैं। अगर ऐसे होता, अभी दोनों देखेंगे हम इंशाल्लाह। देखें, अलल माई, कश्ती पानी पर चलती है, सफीना फाइल, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर आला हरफ जार, अल माई मजरूर, जार मजरूर हुआ, मुताल्लिक किसका हुआ? फेल का। मुताल्लिक किसका हुआ? फेल का। तो फेल, तजरी फेल फाइल और मुताल्लिक से मिलकर ये जुमला फेलिया खबरिया हुआ। तजरी फेल अपने फाइल और मुताल्लिक से मिलकर जुमला फेलिया खबरिया। लेकिन अगर हम इसको यूं ही कर दें, मैंने कहा देखें इस कंसेप्ट में कुछ नहीं है, कंसेप्ट में बस इन्होंने यही बताया है कि हमें मिलेगा, फेल मिलेगा, क्योंकि अज्जाउल जुमला की बात की है ना, अज्जाउल जुमला की, हमको इसमें मिलेगा और कहीं हमको ये वाला कंसेप्ट है। लेकिन हम तरकीब के जरिया उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। आवाज बताएं, अभी आवाज आ रही है? जी जी। तो ये जुमला फेलिया खबरिया हुआ, लेकिन अगर इसको मुझे जुमला इस्मिया बनाना हो तो कोई बंदा मुझे बताएगा कैसे जुमला? अस्सफीनतु तजरी अलल माई। अस्सफीनतु तजरी अलल माई, सफीनतु, ठीक है, अस्सफीनतु तजरी अलल माई। अब सफीना ये जुमला इस्मिया बन जाएगा, लेकिन इसकी तरकीब कैसे होगी? ये तरकीब थोड़ी इंटरेस्टिंग है और मैं जानना चाहूंगा किसी बंदे से। जी, सफीनतु मुब्तदा, तजरी फेल, हुआ जमीर, जी, हिया जमीर फाइल, अल हर्फ जार, माई मजरूर, जार अपने जी, मकसूद से मिलकर मुतल्लक हुआ। तजरी फेल का, तजरी फेल फाइल मुतल्लक से मिलकर जुमला फेलिया खबरिया होकर खबर हुआ। सफीनतु मुब्तदा का, मुब्तदा अपने खबर से मिलकर जुमला इसमें खबरिया हुआ। जी, जी, हाँ। कोई एक बंदा और कर दे, एक बंदा और। जी, एक बच्चा और कर दे इसकी तरकीब। आवाज नहीं आ रही मेरी? जी सर, मैं बोलूं? जी जी, बोले। अस्सफीनतु मुब्तदा और तजरी फेल, और उसमें जो हिया है वो फाइल, और जी, अला जार और मा मजरूर, फेल फाइल जार मजरूर मिलके तजरी फेल का मुताल्लिक हुआ, और फेल फाइल और मुताल्लिक मिलके जुमला फेलिया खबरिया होके खबर हुआ अस्सफीनतु मुब्तदा। तो जुमला हाँ इस्मिया बिल्कुल खबर। सही है। देखें सारे बच्चे सुन ले, मेरा थोड़ा सा सुन लीजिएगा, इस तरीके का होता है। बिल्कुल सही किया है, दोनों ने सही किया है, लेकिन एक छोटा सा जुमला छूट जाता है, जिस छोटे जुमले को हम यहाँ समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। वो क्या है? हमने यहाँ लिख दिया, मैं लिख देता हूँ, अस्सफीनतु। क्या हुआ? अस्सफीनतु, अस्सफीनतु तजरी अलल माई, तजरी अलल माई, ठीक है। अब सफीनो हो गया मुब्तदा, अब ये पूरा हो गया खबर, मुब्तदा और खबर। चले मुब्तदा को अलग हटा देते हैं, पहले तजरी का कर देते हैं। सफीना तो मुब्तदा हो गया, बिल्कुल क्लियर। तजरी अलल माई, तजरी फेल, ठीक है, उसमें जमीर हिया फाइल, जमीर इसमें हिया की फाइल जो लौट रही है सफीना की तरफ, ठीक है, जो लौट रही है सफीना की तरफ, या फिर उसको वहीं छोड़ दें, कोई मसला नहीं है लौटने का। फेल अपने फाइल और मुताल्लिक से मिलकर जुमला फेलिया खबरिया हुआ, ठीक है। अब आप बोल रहे हैं कि जुमला फेलिया खबरिया होकर मुब्तदा हो गया,
जुमला फेलिया कोई जुमला मुब्तदा बन सकता है? नहीं, लेकिन उसको ऐसा बोलते हैं कि जुमला फेलिया बतावीले मुफरद होकर, क्या बोलते हैं? बतावीले मुफरद होकर, मतलब उसको मुफरद माना गया क्योंकि तरकीब मुब्तदा नहीं हो सकती, बतावीले मुफरद होकर। ठीक है, ये आगे याद रखना, काफी जगहों पे आएगा कि ये पूरा जुमला बतावीले मुफरद होकर, यानी मुफरद मानकर। बतावील का मतलब क्या है? यानी मुफरद, इसको मान लिया गया। ठीक है, इसको मुफरद मानकर इसको हमने पूरा खबर बना लिया, किसका? सफीना मुब्तदा का। तो सफीना मुब्तदा अपने खबर से मिलकर जुमला इस्मिया खबरिया हुआ। ठीक है, जुमला इस्मिया खबरिया हुआ। अब यहाँ से एक दो जुमला और मुझे थोड़ा सा इंटरेस्टिंग दिख रहा है, हम उसको देखेंगे और इन मिसालों से हम आगे बढ़ेंगे इंशाअल्लाह। ठीक है, वो इंटरेस्टिंग क्या है? उसे दो जुमले में जो यहाँ पर दिख रहे हैं, सबसे पहले 4 नंबर की तरकीब कोई बच्चा कर देगा जल्दी से, चौथे नंबर की तरकीब कर देगा कोई। ताकुलु जरा फेल बोलने से पहले नाम बोल दिया कर दिए, ठीक है? साइद सर। ताकुलु फेल, हाँ अशातु फाइल, जी फूलन जी मातूफ अलै। सुन रहे सर? जी हेलो। बिल्कुल सुन रहा हूँ। फूलन हाँ, मातूफ अलै। वाव जी हरफत जी सुन रहा हूँ शायर, सुन रहा हूँ। वाव हरफत शायरन हाँ मातूफ, मातूफ मातूफ अलै जी मिलकर मफूल बिही हुआ ताकुलु फेल का। ताकुलु फेल अपने फाइल और मफूल बिही से मिलकर जुमला फेल खबरिया। हाँ, अब उससे पहले जो यहाँ सीखेंगे उसको सीखेंगे, पहले उससे पहले एक चीज हमें और समझना चाहिए। अभी एक बच्चे से और तरकीब कराऊंगा मैं। एक आता है जैसे गुलामो जैद, क्या आया? गुलामो जैदिन, ये इसे क्या बोलते हैं बताना? मुजाफ मुजाफ इलैह। इसे बोलते हैं मुदाफ मुरक्कब इजाफी। मुदाफ, हाँ, मुदाफ मुजाफ इलैह। मुजाफ ठीक है, गुलामो जैदिन, मुजाफ मुजाफ इलैह। गुलाम होता है मुजाफ, जैद होता है मुजाफ इलैह। गुलाम जैदिन, गुलाम मुजाफ होता है, जैद मुजाफ इलैह होता है। ठीक है, एक होता है मातूफ मातूफ अलैह। क्या होता है? मातूफ मातूफ अलैह। उसमें आपको समझना चाहिए, यहाँ मुदाफ मुदाफ इलैह में पहला वाला होता है मुदाफ, दूसरा वाला होता है मुदाफ इलैह। पहले वाला होता है मुदाफ, दूसरा वाला होता है मुदाफ इलैह। लेकिन आप अगर गौर करें, मातूफ मातूफ अलैह में पहला वाला होता है मातूफ अलैह, बाद वाला होता है मातूफ। पहले वाला क्या होता है? मातूफ अलैह, बाद वाला क्या होता है? मातूफ। इस चीज को थोड़ा सा समझिएगा, मैं अलैह और इलैह की बात कर रहा हूं। मुजाफ इलैह, मुजाफ मुजाफ इलैह, और यहाँ होता है मातूफ अलैह पहले होता है, मातूफ बाद में होता है। समझ रहे हैं? कोई बच्चा इसको रिपीट कर दे जो मैंने कंसेप्ट बताया है। यस सर। क्योंकि इस बहुत सारे हैं और वो गलती करेंगे। अभी आप में से 40-50% बच्चे इस आपने जो बोला सर जी वो बोले। ये है कि मुजाफ मुजाफ इलैह में पहले तो और मुजाफ आता है, दूसरे मुजाफ इलैह आता है, और मातूफ मातूफ आला में जी पहले मातूफ आला आता है, उसके बाद मातूफ लेटर ऑफ मातूफ एंड देन मातूफ आता है। जी जी पहले मातूफ आला देन हाँ लेटर आफ्टर मातूफ। जी। यहाँ पर एक बच्चे ने सवाल किया कि मातूफ क्या होता है। ठीक है, किसी ने पूछा मातूफ क्या होता है, तो ये तवाबे की किस्म है। तवाबे जानते होंगे जो अपने इराब में, अब जब निकली है तो हम उसको भी ले जाएंगे क्योंकि किताब है नहीं, तो निकली है तो उसी की तरफ थोड़ा सा मुड़ जाएंगे। तवाबे क्या होता है? तवाबे, अगर किसी को किस्म पता हो तो बताना मुझे। मेरा जब सनाबिल में जब एडमिशन हुआ था तो मुझे ये क्वेश्चन पूछा गया था इंटरव्यू में। कौन कौन सी बताना, बताएं। तवाबे किसी बात हो, कोई बताता है कौन कौन से? बहुत इम्पोर्टेंट है, ये बहुत एक तो इम्पोर्टेंट है है सर। नात मनऊत और एक है बदल जी मुबतदा मिन्हु। हाँ हाँ, एक ताकीद है, एक अत्फ सर। है और एक अत्फ बयान है। अत्फ बिल वाव है, अत्फ बिल हर्फ है, या अत्फ बयान आता है। ठीक है, हाँ अत्फ सर। बयान आता है। इन पांचों को याद कर लेना। चलिए,
पहला है मौसूफत। जी बेटा, मौसूफत क्या है? जो 5 तवाबे हैं, खमसत तवाबे, ठीक है, 5 तवाबे हैं। तवाबे का मतलब मैं पूछूंगा फिर बता दूंगा। तो 5 कौन से हैं? पहला है अल अव्वल अन्नात, ठीक है, अन्नात वल मनऊत, अन्नात वल मनऊत जिसको मौसूफ सिफत बोलेंगे। दूसरा आपका बदल मुब्दल मिनहू, ठीक है, बदल व मुब्दल मिनहू। तीसरा आता है आपका अत्ताकीद, अत्ताकीद। फिर उसके बाद ये 3 हो गए, फिर 2 बहनें आ जाएंगी या 2 भाई आ जाएंगे। वो कौन आएंगे? अत्फ बिल हर्फ, जो वाव के जरिया होता है, या और भी जो अत्फ के आते हैं अल्फाज, ठीक है। इसी तरीके से एक होता है अत्फ बयान, एक क्या होता है? अत्फ बयान। ये काफी ऊपर की डिटेल है, इसको कभी डिटेल में इंशाल्लाह पढ़ेंगे, लेकिन मैं समझा से मिसाल के जरिए या 2-3 मिसालों के जरिए मैं समझा दूंगा ये होता क्या है। सर तवाबे का प्लीज माना क्या है, कोई बताएगा? जी सर, अत्व जी बयान बोले। जो आता है वो उसका लेटर कौन सा लेटर आता है अत्व बयान में? क्या कहना चाह रहे हैं? मिसाल? जैसे कि सर हाँ सर, मिसाल वही सोच रहे। अबू हफ्स उमर बड़ी मिसालों में से है, अबू हफ्स उमर, ठीक है। तो अबू हफ्स जो है, उसके बाद उमर जो आया वो अत्फ बयान है, ठीक है, यानी अबू हफ्स जो है वही है जो उमर है, ठीक है। ये मिसाल ठीक इसकी है आती सर, है, बाकी इंशाल्लाह डिटेल में पढ़ेंगे। ताबे क्या थैंक। होता है उसकी मुझे बताएं, ताबे कोई बच्चा मुझे बता देगा, हाँ सर, ताबे तो ताबे क्या होता ये है? है कि सर वो जैसे कि पहले लेटर में जो एरब आएगा सेम वैसे, सेम दूसरा लेटर में वही जी एरब आएगा। उसको जी बिल्कुल फॉलोअर्स। यही मतलब होता है, पहले वाले हाँ में सर, जो फॉलोअर्स, फॉलो होगा। लाइक हाँ बिल्कुल, फॉलोअर्स। तवाबे का मतलब क्या है? फॉलोअर्स हैं, बिल्कुल चुप जाए, ठीक है, फॉलोअर्स है। तो पहले वाले का जो इराब होगा सेम इराब इसका होगा। जैसे मिसाल के तौर पे आप देखें, मिसाल के तौर पे आप यहाँ पर देखें, जा अल वलदो, जा अल वलदो, लड़का आया, ठीक है, लड़का आया। अब हमें इसकी क्या लाना है? नात लाना है, सिफत लाना है। अब सिफत का आप पूछोगे तो इसका इराब क्या होगा, तो हम बताएंगे सिफत का वही इराब होगा, ठीक है, नात का वही इराब होगा जो मनऊत का इराब होता है, यानी मौसूफ का वही इराब होगा जो सिफत का इराब होता है। अगर वलदो पे जम्मा आया, ठीक है, वलदो अगर मरफू है तो आपका सालिहो भी मरफू होगा। अगर रईतुल वलदा अस्सालिहा, रईतुल वलदा था, ठीक है, यानी अगर वो मफूल भी बन रहा था और वलदा पे आपका फतहा आ रहा था, वो हालत मंसूब में, हालत नसब में था, तो क्या होगा? तो सालिहा भी आपका उस पर फतहा आएगा और इसी तरीके से उस पर वो आपका हालत नसब में होगा। यहाँ पे इसको बोलने की वजह से मुझे एक कंसेप्ट आ जहन में, मैं उस पर हम बात करेंगे इंशाल्लाह। बहुत सारे बच्चों के लिए वो नया होगा, बहुत सारे बच्चों के लिए उनको आज तक पता नहीं होगा ये होती क्या चीज है। पहले बताएं, ये समझ आ गया नाम क्या होता है, ठीक है सर? मौसूफ जो है वो तो नाम। आप नहीं बोले, आपकी आवाज बहुत स्लो है। सर मौसूफ एक और मिसाल दूंगा, तीत की मिसाल, एक मिसाल और दूंगा। अकला अकलल वलदो नफ्सुहु, अकलल वलदो नफ्सुहु। आप अपना बंद कर लें, आपकी आवाज वैसे भी नहीं आ रही थी, बहुत दूर से आ रही थी आपकी आवाज। अकलल वलदो नफ्सुहु, ये किसकी मिसाल है? ताकीद। ये तवाबे में किसकी मिसाल है? ताकीद की मिसाल है, ठीक है, किसकी मिसाल है? ताकीद की मिसाल है। लड़के ने खाया, अकलल वलदो, लड़के ने खाया, वलदो। और नफ्सुहु का इराब क्या होगा? देखें, ये एग्जाम वाला क्वेश्चन है कि नफ्सुहु का इराब क्या होगा। ये वाली जो इबारत है, इस तरह की इबारतें एग्जाम में पूछी जाएंगी आपसे। तो अकलल वलदु नफ्सुहु, चूंकि नफ्सुहु जो है ताकीद है, नफ्सुहु क्यों लेकर आए कि लड़के ने खुद ही खा लिया, उस माने है ना, सेल्फ के माने में लेके आते हैं, लड़के ने खुद ही खा लिया, अपने आप से खा लिया, तो ये ताकीद के लिए आया है। तो जो इराब जिस चीज की ताकीद के लिए आ रहा है, ठीक है, जिस चीज की ताकीद के लिए आ रहा है उसका जो इराब होगा वो ताकीद का भी इराब। तो किसकी ताकीद के लिए आ रहा है? ये लड़के की ताकीद के लिए आ रहा है। किसकी ताकीद के लिए? लड़के की ताकीद के लिए आ रहा है। और हमने देखा कि लड़के पर जम्मा है तो नफ्सुहु पर भी जम्मा होगा,
ठीक है, नफ्सहू पर भी जम्मा होगा। ये इबारत याद रखना, किसी भी एग्जाम में आके बच्चों को हिला सकती है ये वाली इबारत। और इस तरीके की एग्जाम्पल आए आपके पढ़ने के टाइम पे, इसको इराब अच्छे से समझ लेना कि यहाँ पर क्या इराब होगा। माना कोई आप किताब पढ़ रहे हैं या न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, मैगजीन पढ़ रहे हैं, या इसी तरीके से आपको ग्रामर का पोर्शन पढ़ रहे हैं, तो समझ लेना इस टॉपिक को अच्छे से। जब हमारा आएगा इंशाल्लाह एक बार ताकीद से दोबारा से, तब हम इसको पढ़ेंगे, क्योंकि आज तो बस बात निकल गई, तब उस पर बहस हो रही है। क्लियर है, तब उस पर बहस हो रही है। अब मेरे जहन में एक पॉइंट आया, तवाबे को छोड़ते हैं, यहां से 2 मिसालें मैंने दे दी, बस समझा दिया है कि ये फॉलो करता है इराब में। किसमें फॉलो करता है? इराब में। इराब किसे बोलते हैं? इराब बताएं, इराब किसे बोलते हैं? रफा नसब रफा नसब और जर जेर जी, और कोई बताए? मजदूर। बंगाल के, आप बंगाल से हो? जी, बंगाल के सेट में आया था ये क्वेश्चन। और कोई बोले, कोई और बोले। रफा नसब जाबिर क्या लिखा है इन्होंने? गलत। कोई और बताए, इराब किसे बोलते हैं? सर हर्फ के आखिर में जो नहीं बोले, आपकी आवाज नहीं आ रही है। जिनको मैंने अभी मना किया था आप नहीं बोले, आपकी आवाज बहुत दूर से, पता नहीं क्या आप दूर जाके बोल रहे हैं क्या। ठीक है, स्टेट ऑफ द लास्ट लेटर इन अ वर्ड। ठीक है, ऐसे नहीं बताओ सर। आप अरबी में बताओ। सर एरा मुअर्रब की जमा है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं बेटा, वो आराब है, वो आराब किसी और की भी जमा सर होगी। महल एराब में मुख्तलिफ महल्ले नसब महल्ले रफा इराब नसब अलग जर, अलग चीज है। जबर जेर पेश, मतलब मिल्ली उसमें आपने सही कहा है, बिल्कुल सही कहा मुख्तलिफ। मिल्ली। अरबी में पूछ रहा हूँ, अरबी में वो आप लिखा है तो आप अरबी में लिख सकते हो। सर फतह जमा और कसरा। जी बिल्कुल यही होता है। ठीक है, यही है, इसी को सर बोलते हुए उसको मेरे जहन उसको में आ ऐसे गया था। ऐसे बोलते हैं ठीक है, सर, मंसूब मजरूर और मरफू जो यूज होता है, जैसे कि लाइक। मौलाना साहब यही तो समझाना है। हालतुल एराब है ये। क्या ये क्या है? ये हालतुल एराब होती हैं, हालत एराब होती हैं। ठीक है, हाँ तो जी सर। वो कौन सी हैं? एक है इराब, हालतुल इराब। अब मैं इसको अपनी एग्जांपल कैसे बनाऊं यार? ठीक है, चलो बनेगी तो बन जाएगी, वरना समझाते हैं। एक है हालतुल इराब। हालतुल इराब क्या है, आप समझिएगा इसको। यहाँ अब इन एग्जांपल को हम यूज कर लेते हैं, अच्छी बातें हमारे सामने मौजूद हैं। ये कहाँ पहुंच गए यार? बहुत दूर चले। एक दो दिन बस बर्दाश्त कर लीजिए। ठीक है, ये मोबाइल से कहीं भी हाथ लग जाता है, कुछ भी हो जाता है, इसके लिए सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। सर हम किताब में कुछ रखा है? 14-15 पेज में थे। अच्छा, 14-15 पेज में थे। अरे ये मैं तो और आगे जाता जा रहा हूँ, दिक्कत क्यों नहीं आएगी 14-15 में? ये वाली दिक्कत पता है उसमें बिल्कुल भी नहीं आती है, लैपटॉप में तो बिल्कुल भी नहीं आएगी, उसमें क्यों आ जाएगी? ये मोबाइल में छोटा सा है, कहीं भी हाथ इधर उधर घुमाता हूँ, मैं लिखता भी हूँ तो उससे हो जाता है। अब हालत इराब क्या है? जैसे यहाँ पर मिसाल है, यहाँ पर रकीबा इब्राहिमो अल हिसाना, इसकी हालत इराब बता देना मुझे जरा। माना की तब्दील के बगैर इसम की हालत इराब कहलाती है, माना की तब्दीली के बगैर। जी देखें, रकीबा इब्राहिमो जो है वो हालत रफा में है, अल हिसाना जो है वो हालत नसब में है। ठीक है, हालत नसब में है। फिर यहाँ पर अगर मैं देखूं, अल माई जो है वो हालत जर में है। इब्राहिम हालत रफा में क्यों है? क्योंकि वो फाइल है।
अब हालत रफा में कौन कौन होता है, हमें मरफुआत याद करना पड़ते हैं, और मरफुआत, मंसूबात, मजरूरात ये पूरी नहव की बुनियाद है, यहीं से क्वेश्चन बनते हैं। आप एक भी क्वेश्चन इनके बाहर का दिखा दें, अभी यूजीसी नेट के उसमें कितने क्वेश्चन आए मुझे पता नहीं, मैंने देखा नहीं है, लेकिन ग्रामर का कोई भी क्वेश्चन अगर यहाँ से बाहर आप दिखा देंगे, नहीं होता है। मरफुआत, मंसूबात, मजरूरात, मरफुआत कितने होते हैं? 8 मंसूबात कितने होते हैं? 12 मजरूरात कितने होते हैं? 2। ठीक है, मजरूरात होते हैं 2। इसके बाहर का क्वेश्चन होता ही नहीं है ग्रामर में, बस इन्हीं मरफुआत मंसूबात पे अटका हुआ है। अब हमारे बच्चों का क्या है, उनको पता ही नहीं है कि ये मरफू, मंसूब, मजरूर ये क्या है, ये रफा, ये नसब, ये जर, ये इसे बोलते क्या है, ये हालत है, ये क्या है, हालत है। और उस हालत को दिखाने के लिए, उस हालत को दिखाने के लिए जिसको हम बोलते हैं इराब, इराब के लफ्जी माना क्या है, जाहिर करना। क्या बोला, उसी को मैं बोल रहा हूं। उस हालत को दिखाने के लिए, उस हालत को जाहिर करने के लिए कुछ हरकतों का यूज करते हैं। ये क्या है, हरकतें हैं। ये क्या है, जम्मा, फतहा, कसरा, ये जो क्या है, ये आपकी हरकतें हैं। जी बिल्कुल ठीक है, ये जम्मा, फतहा, कसरा, ये क्या है, ये आपकी हरकतें हैं जो कि आती है। जम्मा किस हालत में आता है बताना, जम्मा किस हालत में आता है? हालत रफा में। फतहा किस हालत में आता है? नसब में, हालत नसब में। और इसी तरीके से कसरा किस हालत में आता है? तो जिनको पता नहीं था वो नोट बना लें, जिनको पता नहीं था, वही मैंने बताया था, किताब में कुछ नहीं मिलेगा आपको, मेरे जो मैं बोलूंगा वहीं से नोट बनाना पड़ेंगे। ये एग्जाम में आ चुका है, इसी बार सेट का क्वेश्चन उठा के देख लेना, ठीक है, सेट का क्वेश्चन उठा के देख लेना, यहीं से क्वेश्चन बनाया हुआ था उन भाई साहब ने जिन्होंने भी बनाया था। तो अल हरकात है, ये कौन सी है अल हरकात, वो कौन सी है, अज़म्मा, अल फतहा, अल कसरा, ठीक है, अल कसरा। देखिए मैं कितना बोलूंगा, बार बार क्वेश्चन यही बेसिक से आते हैं और बच्चे यही गलत करके आते हैं, ठीक है। कंसेप्ट क्लियर, जी बोलें बच्चे। सर मेरा एक छोटा सा सवाल था, वो ये कि सर इराब एंड आराब, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टू सर? इराब जो है ये मस्दर है, का, ठीक है, इराब ये मस्दर है। आराब जो है कालतिल आराब, वो इसम है, ठीक है, देहात जो आता है देहातियों के लिए, ठीक है, वो जमा है, वो अलग चीज है, वो इसम है, वो नाउन है। इराब क्या है, ये आपका मस्दर को क्या बोलते हैं, जीरंड बोलते हैं या कुछ और बोलते हैं, ठीक है, ये आपका क्या है, अफवन अल इराब हुआ आलतु अवाखिर हरफिल लफ्ज, ओके ठीक है। हाँ क्वेश्चन मैं इनसे बोलने वाला था कि जब कोई बात क्लियर हो जाया करे, ठीक है, मैं अभी बीच में रोका है आपने मुझे, मेरी बात क्लियर नहीं हो पाई थी, मैं अभी चल रहा था कि हरकत क्या है, ये जम्मा है, ये फतहा है, ये कसरा है, लेकिन वो क्या है, नसब, रफा, नसब और जर, इनको हालतें बोलते हैं, ये है हालात। ये क्या है, ये है आपके हालात। इस चीज को अपने दिमाग में अच्छे तरीके से बैठा लीजिए, ठीक है, इस चीज को अपने दिमाग में अच्छे तरीके से बैठा लीजिए, बहुत फायदा होगा इंशाल्लाह आगे आने में। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद एक और इबारत मुझे यहां पर दिख रही है, वो इबारत क्या है, जरा इसको क्लियर करना। 8वें नंबर की तर्जुमा करें और उसकी तरकीब कर दे कोई बच्चा। बाकी अभी क्वेश्चन हो तो बताओ, अभी जो हमने जितनी बातें की हैं, अभी कोई क्वेश्चन हो तो बता दें, आप बता दें। जब एक कंसेप्ट क्लियर हो जाए उसके बाद क्वेश्चन पूछ लिया करो, ठीक है। सर मरफूआत कितने हैं और मंसूबात कितने हैं, ये मुझे पता नहीं है सर। वो इंशाल्लाह आगे की डिटेल है, वो सब पता चल जाएगा इंशाल्लाह, ठीक है, उसको अभी रहने दें। ये अच्छी बात है कि आपके अंदर शौक पैदा हुआ है, तो चाहे किताब से देख लें, चाहे कहीं वीडियो से देख लें, चाहे गूगल से देख लें। जब सवाल पैदा होना तो अपने आप से देखना भी एक बहुत अच्छी चीज होती है। यही होता है शौक पैदा करना। आपके अंदर क्लास में आके शौक पैदा हो जाए कि ये मुझे मालूम करना, ये पता लगाना है, तो बहुत अच्छी बात होती है। बाकी टीचर, ये क्लास जो है वो जब टाइम आएगा
तो बहुत सारी चीजों को हम तभी देख लेंगे। जैसे तवाबे की भी बात आई, आप तवाबे को जाके अपने आप से पढ़ो, तब जो इल्म आप हासिल करोगे ना वो कभी नहीं भूलोगे। ये याद रखना, जो इल्म आपके कोई मतलब क्वेश्चन आया आपके जहन में किसी भी तरीके का, और ये तमाम की तमाम चीजें आपने अपनी जिंदगियों में इसको आपने समझा भी होगा, ठीक है, तमाम चीजों को। मतलब एक मर्तबा कभी ऐसा हुआ कि टीचर ने ऐसा बोल दिया, आपने वो चीज जाकर देखी, फिर उसके बाद उस चीज को आप कभी नहीं भूले। तो इस चीज को अपनी जिंदगियों में फॉलो करने की कोशिश किया कीजिएगा, ठीक है। फिर उसके बाद अब यहाँ पर देखें, ताकुल शातु फूलन वशीरा शईरा, यहाँ पर मातूफ अलैह की बात चल रही थी, तो ये तवाबे में से है, तवाबे में से है। चुनांचे पहला है मातूफ अलैह और दूसरे वाले को बोलते हैं मातूफ। पहला है मातूफ अलैह और दूसरे वाले को आपका बोलते हैं मातूफ। तो मातूफ अलैह का जो इराब हुआ, फूलन का जो इराब हुआ, यानी ताकुल शातो, बकरी खाती है, ठीक है, बकरी ये खाती है, ये मफूल बन रहा है। क्या बन रहा है? मफूल बिही बन रहा है। तो मफूल बिही होने की वजह से चूंकि हालत नसब में है और इस पर जो हरकत आई है वो क्या आई है? फतह आया है। तो जब ये हालत नसब में है तो हालत नसब में शईर को भी माना गया, क्योंकि ये मातूफ है किस पर? मातूफ है किस पर? फूल पर। शईर है मातूफ, जो कि मातूफ हो रहा है किस पर? फूल पर, ठीक है। तो जिसकी वजह से पर इसको हम बोल रहे हैं मातूफ अलैह। इसको क्या बोल रहे हैं? मातूफ अलैह। समझ में आई बात? यही होता है मातूफ अलैह, और मातूफ कोई इसके अलावा और कुछ नहीं है। मतलब क्या है मातूफ अलैह का? कि आप इसको मिला लें, अब इसी की जगह पे आप शईर को भी रख दें। यानी मातूफ अलैह की ये भी एक समझाना होता है इस तरीके से, गोया की इबारत इस तरीके से भी है, ताकुल शातु फूलन व ताकुल शातो शईरन, ताकुल शातो फूलन व ताकुल शातो शईरन। लेकिन इसको मुख्तसर करके सिर्फ इस तमाम को ताकुल शात जो एक एक्स्ट्रा बढ़ाना पड़ता है उसको खत्म कर देते हैं और मिला के बोल देते हैं ताकुल शातो फूलन व शईरन। अब तरकीब क्या होगी? तरकीब के लिए आप इसको इस तरीके से पढ़ते हैं। देखें, तरकीब में मुझे एक बच्चे से सुनना है, कोई बच्चा सुना मुझे जरूर दे, कैसे पढ़ेगा इसकी तरकीब, कोई कैसे करेगा? जी। ताकुलु फेल अशातु फाइल फूलन मातूफ अलैहि और हुरूफ आतिफा शाइरन मातूफ मातूफ अलैहि के मिलकर ताकुलु का मफूल बी, फेल अपने फाइल और मफूल बी से मिलकर जुमला फि'लिया खबरिया। अगर आपकी तरकीब में कोई कमी नहीं है तो मुझे करना चाहिए दोबारा। बिल्कुल अच्छी तरकीब है, कोई कमी नहीं है। ताकुलो फेल है और शातो फाइल है, फूल जो है मातूफ अलैह है, शईरन मातूफ अलैह है। सीखने की चीज बस यहीं पर एक्स्ट्रा जो चीज है वो यही है कि मातूफ ऐसे बनाएंगे, डायरेक्ट आप ऐसे नहीं कह दोगे जैसे बच्चे जाके कह भी देंगे कि ये फूलन जो है ये मातूफ अलैह है, ठीक है। फूलन क्या है? वो बोल देंगे कि मफूल बिही है, ऐसे नहीं बोलेंगे। मफूल बिही दोनों है, मातूफ अलैह मातूफ मिलके दोनों मफूल बिही बन रहा है। और यही इबारत जो है किसी तरीके से इस इबारत से एग्जामिनर आपको फंसा सकता है कि फूलन का हालत बताओ, किस हालत में है, या इसको क्या नाम दिया जा सकता है। अलग अलग अंदाज में वो पूछ सकता है, ठीक है। किस तरीके का क्वेश्चन होगा उसके हिसाब से हम जवाब देंगे। तो इसकी असल तरकीब क्या होगी कि हम डायरेक्ट नहीं कह देंगे कि फूलन मफूल बिही है, बल्कि हम है हकीकत में है मफूल बिही, लेकिन तरकीब करते हुए हम क्या कहेंगे कि ये मातूफ अलैह और ये मातूफ प्लस मातूफ अलैह और मातूफ ये दोनों मिलके मफूल बिही बने ताकुलो फेल के। तो ताकुलो फेल अपने फाइल और मफूल बिही से मिलकर जुमला फेलिया खबरिया हुआ। अगला बता दें जल्दी से, आठवें की तर्जमा और तरकीब कोई बंदा कर दे। जी सर सर इसको फिर से रिपीट कीजिएगा। फूलन व शईरन, इसमें मातूफ और मातूफ अलैह कौन सा है? एक सेंटेंस में मातूफ जी पहले एक सवाल उनका हो जाने दें। तो इन्होंने जो सवाल किया कि मातूफ अलैह, इसको फूलन और शाइरन को मत देखिए, मैंने जनरलाइजेशन करके बता दिया पूरा। यही तो शुरुआत तो हमारी यहीं से ही हुई थी कि मुदाफ इलैह में मुजाफ पहले होता है, मुजाफ इलैह बाद में होता है। इलैह और अलैह को समझा रहा था मैं, लेकिन मातूफ अलैह में मातूफ अलैह पहले होता है, मातूफ बाद में होता है। मातूफ अलैह पहले होता है, मातूफ बाद में होता है। आई समझ में बात? बस खत्म बात। फिर उसको नहीं देखना कि फूलन या शाइरन। अरे मैं उल्टा भी तो कर सकता हूँ, ताकुल शातो शाइरन व फूलन। बताए कर सकता हूँ नहीं कर सकता हूँ? ताकुल शातो शाइरन व फूलन। तो असल है पहले और बाद में। तो पहले वाला होगा मातूफ अलैह, मातूफ अलैह का मतलब वो असल है। फिर उसके बाद एक बंदे को और एक्स्ट्रा डाल दिया गया। जैसे मैं जा रहा था, टीचर ने भेजा वो जरा काम करा के आओ, तो साथ में एक बच्चे को और भेज दिया, तू भी साथ चला जा। तो वो क्या होगा? असल तो मैं हूं ना, तो मातूफ अलैह।
اصل تو فول ہے یہاں پر, ساتھ میں شعیر کو بھی بڑھا دیا, تمہیں بھی کھا لیتے ہیں, آؤ. ٹھیک ہے, تو یہ چیز ہے, اس کو یاد رکھیں گے. یہ یعنی کلمہ میٹر نہیں کرتا ہے, کلمہ تو میں الٹا سیدھا بھی کر سکتا ہوں, فولن و شعیرن, شعیرن و فولن بھی کہہ سکتا ہوں. اصل ہے کہ پہلا والا معطوف علیہ ہوگا, بعد والا معطوف ہوگا, اور مضاف میں اس کا الٹا ہوتا ہے, مضاف میں پہلے آتا ہے اور مضاف الیہ بعد میں آتا ہے. الیہ اور علیہ کو میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. ٹھیک ہے جی سر, کلیئر ہے, جزاک اللہ. ہاں, ایک اور دوسرا بچہ کوئی کوشچن پوچھ رہا تھا, وہ پوچھ لیں, باقی ہم اس کی طرف چلتے ہیں, اگلے والے کی طرف. سر کہہ رہے تھے کہ ایک سینٹینس میں معطوف علیہ کس طرح سمجھے, پہچانے کس طرح اس سینٹینس میں؟ ہاں, مطلب جو بھی سینٹینس ہو تو اس میں معطوف علیہ کیسے ہم پہچانے؟ معطوف علیہ ایسے سمجھائیں کہ پہلے آپ کو حرف عطف دیکھنا ہے, حرف عطف آپ کو مل جائے گا. پہلے جو حروف العواطف جو ہیں, حروف عاطفہ جو ہیں, وہ آپ تمام یاد کر لیں کتنے ہیں. ٹھیک ہے, وہ یاد ہونا چاہیے. حروف جارہ ہوتے ہیں, حروف عاطفہ ہوتے ہیں, حروف تنبیہ ہوتے ہیں, الگ الگ طریقے کے حروف ہوتے ہیں, وہ جب آتا رہے گا ہم بات کرتے رہیں گے. تو وہ ہے, اگر وہ موجود ہے تو پہلا والا معطوف علیہ ہوگا, بعد والا معطوف ہوگا. ٹھیک ہے, جیسے ہمیں مل گیا واو مل گیا, کہیں او ملے گا, ٹھیک ہے, کہیں اما ملے گا, کہیں لاکن ملے گا. تو اس طریقے سے جو حروف عاطفہ آتے ہیں, پہلے والا معطوف علیہ ہوگا, بعد والا معطوف ہوگا. جواب ملا ہے نہیں؟ ٹھیک ہے, جواب ملا. باقی ورڈ میٹر نہیں کرتا, کلمہ آپ کہیں کہ فول جو ہے یہ معطوف علیہ ہے, شعیر جو ہے معطوف ہے, بالکل صحیح بات ہے, ابھی تو صحیح ہے. لیکن اگر میں اس کو الٹا بھی کر دوں, تاکل الشاۃ شعیرن و فولن, تب بھی آپ کہو کہ فول معطوف علیہ, فول بعد آ رہا ہے, پھر بھی آپ کہو گے یہ معطوف علیہ اور شعیرن معطوف ہے. ایسا نہیں, ورڈ میٹر نہیں کرتا, آپ کو ترتیب دیکھنا ہے. پہلے والا معطوف علیہ ہوگا, بعد والا آپ کا معطوف ہوگا, یہ ہوگا. چلیے اگلے کی ترکیب کر دیجیے کوئی بچہ. حل تحب السفر, آپ ہی کر دیں جنہوں نے ابھی سوال پوچھا ہے. سوری سر, یہ فولن اور شعیرن کو ہم ترجمہ اسی طریقے سے کریں گے سر, اردو میں ہے اس کا کوئی موڈ؟ کس طریقے سے؟ نہیں, اصل میں نے اس لیے نہیں کیا, مجھے یاد نہیں ہے اس کا کہیں کیا ہے. فول کا بتائیں, فول کو کیا بولتے ہیں؟ گھاس کا تو نہیں ہے یہ, گھاس کے میننگ میں سمجھ میں تو سر وہی آ رہا ہے, مجھے بھی میننگ نہیں پتا, تبھی سر پوچھا. ہاں, نہیں کسی بچے کو پتا ہوگی تو وہ بتا دے, کوئی لکھ دے کسی بچے کو. سر بیج دکھا رہا ہے, بیج, دانا, بین. ہاں, ٹھیک ہے, تو بیج اور وہ جو کھاتی ہے, ٹھیک ہے, بیج اور جو کھاتی ہے. اب اس کو اگلی ترکیب کو دیکھ لیں, تھوڑا کچھ سیکھنے کے لیے ملے گا اگر مل جائے یہاں پر. اگلی ترکیب کو کر دیں اچھے سے. جی, اس ترکیب کو کر دیں. حل تحب جی, حل حروف استفہام, تحب فعل کے اندر انت ضمیر فاعل, السفر مفعول بھی, فعل فاعل مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ. جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. اور کوئی بتائے؟ یس سر, میں بولنا چاہتا ہوں سر. حال اس میں مبتدا ہے, تحب فعل, اور ضمیر اس میں فاعل, اور السفر یہ مفعول بھی ہے سر. تو فعل, فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ اسمیہ انشاء خبر ہوا سر. خبر ہو کر مبتدا, حال وہ حرف استفہام وہ مبتدا ہوا, مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ انشاء ہوا. دوبارہ بولو سر. ایسا ہے کیا؟ جی پڑھیں سر. حال اس میں جو حرف استفہام ہے وہ مبتدا سمجھیں گے, اور تحب فعل, ضمیر اس میں فاعل, السفارہ جی وہ جو ہے وہ مفعول بھی ہے سر. میں سمجھ گیا آپ کیا کہنا چاہتے ہیں. اس میں تھوڑا کنسیپٹ ہے سمجھنے کا. یہاں پہ حل حرف ہے تو حل مبتدا نہیں بن سکتا, ٹھیک ہے. ہاں جی سر. حل, لیکن ابھی میں آپ کو سمجھاؤں گا کہ کہاں پر جو ہے اس طرح کا مبتدا اور خبر بن جاتا ہے, ٹھیک ہے, وہ میں سمجھا دوں گا, ٹھیک ہے. یس سر. ہاں, تو پہلے اس کو سمجھیں. حل تحب السفر, اس میں کچھ نہیں ہے, بس حل حرف استفہام ہے, اور فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر یہ جملہ فعلیہ انشائیہ ہی ہوگا. کیا ہوگا؟ جملہ فعلیہ
انشائیہ ہی ہوگا. لیکن اسی طریقے کا حرف استفہام میں یا اس میں استفہام کہہ سکتے ہیں وہ جملہ ایک جملہ خبر جو جملہ اسمیہ بھی بن جاتا ہے. کیا بن جاتا ہے؟ مبتدا خبر والا جملہ اسمیہ بھی بن جاتا ہے. وہ کب بنتا ہے؟ وہ کب بنتا ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ یہ والا بن رہا ہے جملہ فعلیہ. استفہامیہ تو ہوگا ہی کیونکہ حل ہے. خبریہ نہیں ہوگا, انشائیہ ہی ہوگا. ٹھیک ہے, خبریہ نہیں ہوگا, انشائیہ ہی ہوگا. لیکن یہ ہے فعلیہ, اسمیہ نہیں ہے. میری بات سمجھیں, یہ ہے فعلیہ, میں نے سمجھایا. ایک دوسرا ہے جو اسمیہ بن سکتا ہے. کوئی ایگزامپل دے دیں, بس میں پوچھ رہا ہوں اگر آپ کو کسی کو پتا ہو. ہاں سر, ما احسن. جی, هل انت متزوج؟ هل انت متزوج؟ نہ سر, متزوج. بالکل بالکل, وہ بھی بات صحیح ہے, لیکن میں اصل میں کچھ اور سمجھانا چاہ رہا تھا. چلیے اس کو بھی سمجھ لیتے ہیں, وہاں پہ بھی آتا ہے. ٹھیک ہے, وہ کیا ہے؟ وہ ہے آپ کا این انتا. ٹھیک ہے, این ابوک. کیا بولیں گے؟ این ابوک. اس کی ترکیب کرنا ذرا بھائی صاحب. کنسیپٹ ملے گا انشاءاللہ یار. کتاب میں کیا ہے, کوئی مسئلہ نہیں کرتا, کیونکہ کتاب تو بڑی آسان ہے. اس کو چھوڑ بھی دیں گے, دوسرے پارٹ کی طرف چلے جائیں گے, وہاں پہ دیکھتا ہوں کیا ملے گا. ہاں, آئینہ ادوات الاستفہام ہے اور خبر مقدم ہے. ابو کا ابو مضاف کا مضاف الیہ, مضاف الیہ مل کر مبتدا مؤخر اور مبتدا مقدم مل کر جملہ اسمیہ ہوگا. جی جی بالکل, یہاں پر وہی ہے جملہ اسمیہ انشائیہ ہوا. جملہ اسمیہ انشائیہ ہوا. یہ کیا ہے؟ تو اینا جو ہے یہ ابو کا اینا کیا ہے؟ یہ خبر مقدم ہے. یہ چیز آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ کبھی خبر پہلے آ جاتی ہے اور کبھی مبتدا بعد میں ہوتا ہے. ان میں سے ایک مثال یہ بھی ہے, ان میں سے ایک ایگزامپل یہ بھی ہے کہ خبر کبھی پہلے آ جاتی ہے اور مبتدا بعد میں آتا ہے. خبر پہلے آئی, اصل کیا ہے؟ مبتدا پہلے آئے گی, خبر بعد میں آئے گی. ٹھیک ہے, پہلے مبتدا آئے گی, بعد میں خبر آئے گی. لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ خبر کو پہلے لایا جاتا ہے, جس کو بولتے ہیں خبر مقدم. کوئی ایسا کچھ ہے نہیں اس میں. خبر مقدم مطلب جو خبر جس کو پہلے لایا گیا, اور وہ مبتدا مؤخر جس کو بعد میں لایا گیا. تو یہ اسی کی ایک ایگزامپل ہے. اب ہم نے جیسے انہوں نے ترکیب کی اینا کیا ہے؟ یہ اینا آپ کا کیا بنا؟ یہ آپ کا خبر, ٹھیک ہے, یہ خبر مقدم بن گیا. اور اس کے بعد ابو مضاف کاف مضاف الیہ, مضاف الیہ سے مل کر یہ مبتدا مؤخر ہو گیا. ٹھیک ہے, کیا ہو گیا؟ مبتدا مؤخر ہو گیا. تو یہ مبتدا, ٹھیک ہے, مبتدا مقدم, مبتدا مؤخر اور خبر مقدم, یہ دونوں مل کے جملہ اسمیہ انشائیہ ہوئے. ٹھیک ہے, یہ مثال الگ ہے. حل تحب السفرہ وہ الگ ہے. ان دونوں میں بہت فرق ہے. ٹھیک ہے, تو ان دونوں ایگزامپل کو کبھی سمجھیں گے. اب یہ فسا کب سکتے ہیں؟ یہی مثال آپ کے ایگزام میں آ جائے اینا ابو کا, اور پوچھ لیں کہ اینا کیا ہے, مبتدا ہے یا خبر ہے. بتائیں کتنے بچے؟ 50% سے زیادہ بچے غلط کر کے آ رہے ہوں گے اس کو. کنسیپٹ چھوٹے چھوٹے ہیں لیکن سمجھنا بہت ضروری ہے. جی بتائیں جلدی سے. خبر سر میرا ایک سوال تھا سر. جی خبر ہے سر یہ. ہاں, سوال پوچھ لیں سر. ہلو, جی جی, آواز آ رہی ہے. یہاں پہ آئینہ جو خبر مقدم ہے, یہ آئینہ جو خبر مقدم ہے, یہ کیا ظرف ہونے کے وجہ سے ہے مقدم؟ جی بالکل بالکل, ظرف ہونے کی وجہ سے ہے. ٹھیک ہے, ظرف ہونے کی وجہ سے ہے. یعنی جیسے بولیں گے نا ابو کا فی البیت, میرا باپ ابھی فی البیت, میرا باپ گھر میں ہے. تو فی البیت کیا ہے؟ یہ خبر ہے. تو ایسے ہی اینا کیا ہے؟ یہ خبر ہے. سمجھ میں آئی بات؟ تو اصل کیا ہے ابو کا؟ تمہارا باپ کہاں, تمہارا باپ کہاں, اصل ایسے بولیں گے. ٹھیک ہے, تمہارا باپ کہاں ہے, اور ہم اردو میں بولتے ہیں کہاں بعد میں آتا ہے ہمارا. تو ایسے ہی ہے ابو کا اینا. تو میرا جواب کیا ہوگا؟ ابھی فی البیت. تو اینا کا جواب گویا کہ خبر میں آ رہا ہے. اینا کا جواب ہم کس میں دے رہے ہیں؟ خبر میں دے رہے ہیں کہ ابھی بن گیا مبتدا, میرے باپ گھر میں ہے. فی البیت خبر بن رہی ہے فی البیت. تو اینا بھی جو ظرف ہے وہ آپ کا کیا بنے گا؟ وہ بھی آپ کا خبر بنے گا. ٹھیک ہے, اس چیز کو آپ اچھے طریقے سے یاد کریں گے. باقی میں نے بتایا تھا یہاں پر اس کتاب میں تو کچھ اتنا خاص ہے نہیں, تو انشاءاللہ اس کتاب کو ہم پروسیڈ کریں گے. لیکن ایگزامپل سے ہم جو فائدہ اٹھا رہے ہیں ترکیب کے ذریعہ, وہ ہمیں چلیں اس کا ترجمہ
क्योंकि मैंने बताया कुछ बच्चे बहुत ही ज्यादा बेसिक वाले हैं हमारे पास, जिनको थोड़ा बहुत ट्रांसलेशन की इस तरीके की जरूरत है। जहां जहां लर्निंग की बात होगी किसी भी तरकीब में, मैं इंशाल्लाह उसको समझाने की कोशिश करूंगा। जल्दी से एक बच्चा इन तमाम का तर्जुमा करने की कोशिश करे, कोई एक बच्चा, सैयद आप हो या कोई और, जल्दी से। फरीदुन यजरी फी शारिई, जहां सीखने का होगा मैं रोक लूंगा आपको। बोले, कोई बोले, आवाज नहीं आ रही मेरी? फरीद रास्ते में चल रहा है। जी, अलीयुन यरकबुल हिमारा, अली हाँ, सवार होता है गधे पर। गधे पर सवार होता है। हाँ, यहतरिकुल हतबु, जी, काठ जलता है। काठ जलता है, लकड़ी जल रही है, ठीक है। यतसल्लकुल गिलमानु अल जबला, बच्चे, तसल्लका, ठीक है, इसके माने क्या होंगे? चढ़ना, बच्चे या लटकना, पहाड़ से लटक रहे हैं या पहाड़ पे चल रहे हैं। इफ्तरसा ज़ेबु कबशन, भेड़िए ने एक मेंढे को चीर फाड़ दिया। अस्सालबु याकुलु दुजाज, लोमड़ी जो है वो आपका मुर्गी को खाता है। अलकलबु यनामु फिल बिस्तान, कुत्ता जो है आपका बागीचे में सोता है। युहिब्बुल वलदु अल बुर्तुकाल, ठीक है, लड़का संतरे को पसंद करता है। अलबुस्तानी यजमउल अज़हार, जो गार्डनर है, बागीचे वाला है, वो फूलों को जमा करता है। यसबहुल औलादु फिल बहर, सबिहा यसबहु। अच्छा, बाप वगैरह भी तो सीखना होंगे, वो इल्म सर्फ में सीखेंगे, उसकी डिटेल क्या होती है, कौन किससे बाप से है। ये सबहा किस बाप से है, बताना जरा। फतह यफ्तहु, किस बाप से है? फतह यफ्तहु। सही कह रहे हैं आप? जी सर, सही है। ठीक है, फिर उसके बाद ये यजरी किस बाप से है? जरा यजरिबु, जी, ज़रबा यजरिबु से। फिर उसके बाद तसल्लका, तफअउल, तफअउल, बाबे तफअउल, हाँ, तकब्बल बाबे तकब्बल तफअउल से, ठीक है। उसके बाद इफ्तरसा, बाबे इस्तिआल, इफ्तियाल, इफ्तियाल, इसमें हुरूफ असलिया कौन से हैं इफ्तरसा में? क्वेश्चन इस तरह के आते हैं ना, इसी बार आया था। फारासीन, फारासा, फारासीन, फारासा, फारसा। यहतरिकु कौन से बाप से है? हुरूफ असलिया बता दें। हाराका, हरका, हरका यहरिकु, हाँ, यजमाउ कौन से बाप से है? जी, फतह यजमाउ, फतह यफ्तहु, जमा यजमाउ, ठीक है, फतह यफ्तहु। अच्छा, यजूबो जो है, उनको जानते हो हुरूफ मुतल्ला को? हुरूफ मुतल्ला जानते हो आप लोग? जी सर। हुरूफ मुतल्ला जानते हो आप लोग, अच्छी बात है, बड़े नॉलेज वाले लोग हैं। तो हुरूफ मुतल्ला में हमें तीन तरह के फेल मिलते हैं, बल्कि तीन तरह के मिलते हैं खासकर। एक आता है मिसाल, ठीक है, नाकिस आता है, एक आता है अजवफ। मिसाल, नाकिस और अजवफ, ये यज़ाबा यज़ूबु, ये किसकी मिसाल है और कौन से बाब में है? ये दो क्वेश्चन के आंसर मुझे चाहिए, ठीक है, कमेंट में बच्चियां लिख दें, ठीक है। सर कौन सा? ज़ाबा यज़ूबु, ज़ाबा यज़ूबु, अच्छा, इसमें मिसाल है, हाँ, मिसाल है, नाकिस है, अजवफ है। अजवफ सर, अजवफ सर, अजवफ है, जी जी बिल्कुल। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। बीच में आवाज बहुत हो गई हरफ होने की वजह से, हाँ, बीच में हरफ इल्लत है, तो वो पता है ना आपको, मिसाल कौन सा होता है, नाकिस कौन सा होता है, अजवफ कौन सा होता है, ठीक है। जी सर, फा कलमे में मिसाल, तो यहाँ से भी अजवफ बी कलमे में, आइन कलमे और लाम कलमे में नाकिस। जी, ठीक है। तो ये लगातार इसी तरीके के क्वेश्चन बन रहे हैं, यानी अपना ने आज इस तरह के काफी टॉपिक डिस्कस कर लिए, जहां से लगातार क्वेश्चन बन रहे हैं आपके, जिन भी एग्जाम में ग्रामर पूछी जाती है, जिन भी एग्जाम में ग्रामर पूछी जाती है, ठीक है। फिर इसमें भी कुछ नहीं है, और मैं देखूंगा कि इस किताब को खत्म कर दे, और मैंने बोला भी था कि 1-2 दिन में ये किताब खत्म हो जाएगी। सॉरी सर, रिसेंटली जो जेके सेट का हुआ उसमें नाकिस से पूछा गया था क्वेश्चन एक।
हाँ JK सेट का, हाँ बिल्कुल सही बात है, जम्मू कश्मीर सेट का। अच्छा ये मुझे इंटरेस्टिंग चीज मिल गई यहाँ पर, और एनटीए में सर, तो देखने की एनटीए में सर एक सवाल आया था उसमें, एनटीए सीयूटीपीसी में से था वो लफीफ मखरून का, छोड़े मफरू का शायद। हाँ छोड़ दें उसे अब, ठीक है। ये बताएं दक्कतिस साअतु, ये क्या है? दक्कतिस साअतु ये मुदाफ है। ये नहीं सर, है, ठीक है? ये मुजाफ कैसे? क्या मतलब? मुदाफ है सर, दक्कत फेल नहीं है सर? अरे फेल है, बात चल रही है हमारी वो जो आता है दक्का यदुक्को मस। आवाज बंद करें, आवाज बंद करें, आवाज बंद करें, आवाज सुने तो पहले, सारा अपना ही बोल लेंगे, आवाज बंद कीजिए, ठीक है? अरे मुजाफ हमारी उसकी बात चल रही थी, उसी कंटेक्स्ट में मैंने पूछा था, उसी कंटेक्स्ट में उन्होंने बता दिया। दक्का या दुक्को उन्होंने बताया मुदाफ, मुजाफ नहीं बोला, मुदाफ जहां पर आयन आएगा, मुझसे तो इतना आयन निकल भी नहीं रहा है, ठीक है? जो नाकिस मिसाल अजवफ की जो बात चल रही है, उरूफ मुतल्ला की, वहीं पर मुदाफ की जो बात आती है, ठीक है, उसी की बात चल रही है। हाँ तो वक़फ़र रजुलु ये किस बाब से है, जल्दी बताना। वक़फ़र रजुलु मिसाल वाई किस बाब से है, क्या पूछ रहा हूँ, कुछ तो समझे आप जरा भाई। और ये बाजा किस बाब से होगा? बाजा ये भी जो जरा बजरे सर, जरा भाई अजरबो से, ठीक है, जरा भाई अजरबो से। फिर उसके बाद ज़ा यदि हो जरा बजरे सर, दक्का या दुक्को नसर अंसरो। हाँ बिल्कुल ठीक है। तो इस तरीके से हमें प्रैक्टिस करना चाहिए अपनी जिंदगी में, ताकि किसी भी तरीके की कोई दिक्कत ना हो, ठीक है, किसी भी तरीके की कोई दिक्कत ना हो। फिर उसके बाद यहाँ पर आप कुछ एग्जाम्पल को देखने की कोशिश करें, ठीक है। अगसिलो यदैया, हाँ जो था वो मुजारे में क्या होगा? यज़ीउ, ज़ा यज़ीउ, ठीक है, ज़ा यज़ीउ होगा मुजारे में जाके। फिर उसके बाद जरा दूसरे वाले को इसको बताना, ये कौन से बाब से है? अलबसो, अलबसो किस बाब से है? बाब समिया यस्माउ, लबिसा यलबसु, ठीक है, लबिसा यलबसु। ये किससे है? नलअबु, समिया यस्माउ, सामिया यस्माउ, हाँ समिया यस्माउ से। और ये मशा ज़रबा यज़रिबु, मशा यमशी, ये वाला क्या होगा? यंतबिहुल हारिसु, इंतबह यंतबिहु सर इफ्तिआल, इफ्तिआल जी, किससे है? इफ्तिआल से। इसके मुझे अभी एक लड़की की जो आवाज आई वो बोलेंगे कि असली कलमा क्या है इसमें, इंतबह में। लड़की, जिस लड़की की अभी आवाज आई थी मैंने जिनको सुना था, देखें यहाँ नाम दिख नहीं रहे, बहुत सारी प्रॉब्लम है, लैपटॉप पे होगा तो नाम पता चलेंगे। बताएं इसमें असली क्या है? अच्छा बच्चे, अनीसा गुल, मैं आपका नाम ले रहा हूँ, आप बताओ, आप इंतबह में हुरूफ असलिया क्या हैं? बच्चे हुरूफ असलिया क्या हैं? जी बेटा, नबहा, ठीक है, क्या है? इनकी आवाज नहीं आ रही है, तो नबहा है इसमें असल। अभी गलती क्या कर रहे थे, कुछ बच्चों ने बोल दिया इनफिआल, इनफिआल। तो आपको समझना है थोड़ा अच्छे तरीके से कि असल तो नबहा होता है बेदार रहना, या ठीक है आपका अच्छे तरीके से अवेकनिंग रहना, वो नबहा से बनता है। फिर उसमें आ गया इंतबहा, ताई तो बड़ा है आगे, और ता किस में बढ़ता है? इफ्तिआल में बढ़ता है। लेकिन आपने नून देखने की वजह से क्या बोल दिया कि बाबे इनफिआल से है, कुछ बच्चों ने जैसे बोला। तो इन चीजों को आपको देख के चलना है, ठीक है, इन चीजों को आपको देख के चलना है। तो आज की क्लास को हम यहीं पर खत्म करते हैं, ठीक है। बाकी इंशाल्लाह मैं देखता हूं अगर इस वाले जो ये जुज है, पहला जुज है इब्तिदाइया के लिए, अगर इसमें कुछ खास मिला, अबवाब पर सर्फ में जब बात होगी तब होगी अबवाब पर बात। अबवाब बहुत लंबा टॉपिक है, सिर्फ अबवाब ये 6 अबवाब नहीं है कि आप नसरा ज़रबा फतह की बात कर लें, उसके बाद आपके इफ्तिआल की आती है, इफ़ाल की आती है, इस्तिंसार की आती है, और भी डिटेल में फिर आता है कि इन अबवाब के माने क्या होते हैं। किसी ने पढ़ा है इस तरह का डिटेल में जाके? इफ्तिआल में कौन कौन से माने आ जाते हैं, इस्तिफ़ाल में कौन कौन से माने आ जाते हैं, इनफ़िआल में कौन कौन सा माना आता है, तफ़ाउल में कौन सा माना आता है, तफ़अुल में कौन सा माना आता है? किसी ने पढ़ा ये डिटेल में? म्यूट कर दें। जी सर, थोड़ा बहुत पढ़ा था। नसरा से, सना नसरा से, ज़बल आयत बोलो, ठीक है।
تو یہ کافی ڈیٹیل ہے باب کی، اور باب جو ہے ابواب کا جو ٹاپک ہے وہ علم صرف کا ہے. علم صرف کو انشاءاللہ ابھی ہم نہیں دیکھ رہے، علم صرف میں کہیں نہ کہیں بحث ضرور آئے گی، اس کو ہم لگاتار دیکھتے چلیں گے. یہ مت کوشش کیجئے کہ آپ ساری چیزوں کو ایک دم سیکھ لیں. ابھی کے میرے لیکچرز کا مطلب یہ ہے، یا اس کتاب میں بھی ایسے ہے کہ آپ کو بس یہ تھوڑا سا پانی پلا کے چھوڑ دیں کہ آپ کو بعد میں پتہ چلے ابھی اور پینا ہے، بہت پینا ہے ابھی. ٹھیک ہے، جیسے ذائقے کے لیے میں آپ کو تھوڑا سا ایک کاجو دے دوں، ایک بادام دے دوں، ایک اخروٹ دے دوں، اس کے بعد کہ یار یہ ایک ہی ایک دے رہے ہیں، بعد میں کچھ پڑھنا ہے تو کچھ آپ اپنے سے پڑھ لائیے، کچھ اپنے سے خرید لیجئے گا، یعنی اپنے سے پڑھ لیجئے. اور اس کے بعد جب ہماری ڈیٹیل میں لیکچرز آئیں گے ان سارے ٹاپکس پہ، جیسے توابع پہ بحث ہوئی، اعراب پہ کبھی الگ ٹاپک آئے گا پورا. ٹھیک ہے، اور یہاں پر باقی چونکہ الگ الگ ٹاپک پہ ہم نے اس لیے بات کی کہ اس کتاب میں کچھ ہے نہیں. اگر اس جز میں کچھ مجھے نہیں ملا، کوئی بھی ایک ٹاپک خاص نہیں ملا، تو ہم دوسرے جز کی طرف چلے جائیں گے جہاں پر انشاءاللہ ٹھیک ہے بہت کچھ ہم سیکھیں گے. ٹھیک ہے جی سر. جی سر. سر ایک سوال ہے. جی سر میرا ایک سوال ہے. جی جی سر وہ جیسے کہ میں ہاسٹل میں رہتا ہوں تو کبھی پرابلم ہوتا ہے جو ٹائم میں یا ایگزامپل آئیں گی تو انشاءاللہ ہم اس کو بھی دیکھنے کی کوشش کریں گے. ٹھیک ہے، تو اب کیا ہوگا یہاں پر، ابھی مبتدا ہو گیا، موجودن جو ہے اب اور ڈیپتھ میں جائیں، یہاں سے ذرا تھوڑا ڈیپتھ میں جائیں، آپ نے پوری نہیں کی تھی صحیح طریقے سے شاید. ابھی مبتدا ہو گیا موجودن فی البیت. ایک بچہ مجھے موجودن فی البیت کی ترکیب کر کے دکھاؤ، صرف موجودن فی البیت کی. ابھی تو مبتدا ہو گیا، اس کو چھوڑ دو، موجودن فی البیت کی کر کے دکھائیں جلدی سے. بشرا آپ کر کے دکھائیں موجودن فی البیت کی. صالحہ، سلمان، اب نام یاد ہو گئے، کل نام یاد نہیں تھے. ہاں موجودن اس میں موجودن اس میں مفعول ہو جائے گا اور اس کا فاعل نکلے گا. آپ بند کر دیں، آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے، آپ بند کر دیں پلیز، بند کر دیں. ٹھیک ہے، تو موجودن جو ہے یہ آپ کا کیا ہوا، اس میں مفعول. کیا بولیں گے؟ اس میں مفعول. ابھی ایک کنسیپٹ اور میرے ذہن میں آیا ہے، اس کو بیان نہیں کریں گے لیکن آگے نکل جائیں گے. اس میں مفعول ہوا، یہ کیا ہوا، موجودن کیا ہوا، اس میں مفعول ہوا. اس میں ضمیر ہوا کی فاعل، اس میں ضمیر ہوا کی فاعل. ٹھیک ہے، یہ بات یاد رکھنا، اس میں ضمیر ہوا کی، ٹھیک ہے، ضمیر ہوا کی فاعل. اسی طریقے سے بلکہ نائب فاعل ہوگا. کیا ہوگا اس میں ضمیر جو ہوا کی ہے وہ کیا ہے، نائب فاعل. کیونکہ وجدہ میں کیا ہوتا ہے، وجدہ میں نائب فاعل ہوتا ہے نا، بتائیں وجدہ میں کیا ہوتا ہے، نائب فاعل ہوتا ہے. تو موجودن میں جو ضمیر ہوا کی ہے وہ ہے نائب فاعل. پھر اس کے بعد فی جار بیت مجرور، جار مجرور سے مل کر متعلق ہوا. تو یہ متعلق ہوا کس کے، موجود کے. اب کیسے بولیں گے اسے، موجود اس میں مفعول اپنے نائب فاعل، اس میں کیا موجود ہے، نائب فاعل موجود ہے. اس میں پوشیدہ کیا ہے موجود میں، نائب فاعل. تو موجود اس میں مفعول اپنے نائب فاعل اور متعلق سے مل کر، ٹھیک ہے، بتاویل مفرد ہو کر، یہاں بھی پیسے بولیں گے جو میں نے بتایا کہ مفرد کی تعویل میں ہو کر، بتاویل مفرد ہو کر یہ آپ کا خبر ہوا ابھی مبتدا کا. بتاویل مفرد ہو کر یہ خبر ہوا آپ کا ابھی مبتدا کا. ٹھیک ہے، ابھی مبتدا کا. اس چیز کو آپ اچھے طریقے سے سمجھیے گا. یہ ترکیب کا وہ ٹاپک ہے جو 2 سال بچوں کو پڑھایا جاتا ہے مدرسوں میں، لیکن پھر بھی سمجھ میں نہیں آتا ہے. آپ کو امید کرتا ہوں آپ بچے اسی 1-2 مہینے کی کلاس میں انشاءاللہ اس ترکیب کو اچھے طریقے سے سمجھ رہے ہوں گے. تو آئی سمجھ میں تھوڑی بہت. مجھے پتا ہے پہلی بار میں جس کے بندے کو بھی، جس بچے کو بھی پہلی بار پڑھا ہوگا جس نے، اس کو ابھی تو آسان سمجھ میں آنے والی نہیں ہے، ٹائم لگے گا، سچ میں ٹائم لگتا ہے. یہ وہ ہے. اور اس کے علاوہ اگر یہ سمجھ میں آ گیا اس ترکیب کے اندر، عربی کی ترکیب کے اندر، تو اس کے علاوہ کچھ بچا ہی نہیں ہے ترکیب میں. یہی ہے سب سے کٹھن. آئی سمجھ میں بات. سر ایک سوال، صرف ڈائریکٹ نہیں بول سکتے کہ فی البیتی جو ہے یہ متعلق ہو کر سیدھے جملہ ہو کر خبر ہوا ہے؟ نہیں بول سکتے. ایسے کیسے بول سکتے ہیں، یہ فی جار مجرور مل کر متعلق، مطلب کیسے خبر بن جائے گا، ایسے نہیں. اور پھر کہو گے کہ خبر کیسے بنتا ہے، تو ہاں بنا ہے، موجودن فی البیت اس کی اصل ہے. ابھی اصل میں وہ چھپا دیا گیا ہے، اصل اس کی وہی ہے. بات سمجھ میں آئی آپ کو، اس لیے اس کو ترکیب میں لا رہے ہیں. یہ نہیں کہ ہم کوئی پکڑ کے لے کے آئے ہیں، پکڑ کے نہیں لے کے آئے ہیں، اس کی حقیقت ہی وہی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ جیسے میں آپ کو بتاؤں الحمدللہ رب العالمین، یہاں پر بھی وہی مسئلہ ہے، الحمدللہ. ٹھیک ہے، تو الحمد مبتدا ہو گیا، للہ
ये लिल्लाही रब्बिल आलमीन पूरा का पूरा खबर बन रहा है, लेकिन ऐसे ही डायरेक्ट खबर नहीं बना दोगे। लाम क्या है? लिल्लाही, लाम हर्फ जार, लफ्ज़ अल्लाह। देखिए याद रखना, अल्लाह का जब आया तो अल्लाह नहीं बोलते कि अल्लाह मजरूर है, ऐसे नहीं बोलते, लफ्ज़ अल्लाह मजरूर है, या लफ्ज़ जलाला बोलते हैं, पता है ना आपको, अल्लाह के लफ्ज़ को लफ्ज़ जलाला बोलते हैं या लफ्ज़ अल्लाह बोलते हैं। ऐसे नहीं बोलना कभी भी कि अल्लाह मजरूर, अल्लाह मंसूब, अल्लाह, याद रखना, ये चीज भी याद रखना। तो लफ्ज़ अल्लाह क्या है? इसमें मफूल में भी ज़मीर होती है। हाँ बिल्कुल, इसमें मफूल में भी ज़मीर होती है, और वो नाइब फाइल था ना, मैंने बताया जो नाइब फाइल है, हुआ नाइब फाइल है, ठीक है। इसी तरीके से तो लिल्लाही क्या बोलेंगे? अब यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाही, इसमें शिबह फेल क्या होगा? जिस बच्चे ने कहीं पढ़ा है वो मत बताना, मदरसे में पढ़ा है, जिसने नहीं पढ़ा है वो दिमाग लगा के बताओ कि यहाँ पर शिबह फेल क्या होगा। अल्हम्दुलिल्लाही, तारीफ अल्लाह के लिए है, तारीफ अल्लाह के लिए है। जिस बच्चे ने कभी नहीं पढ़ा है वो दिमाग लगा के बताओ कि यहाँ पर शिबह फेल क्या है। जिसने कभी पढ़ लिया है तफसीर में, तफसीर कुरान अजीम में, ठीक है, कहीं पर भी, वो नहीं बताना। फराज अली आप बताएं बच्चे। इदरीस साबितुन होगा क्या? आपने पढ़ा है ना? नहीं पढ़ा था सर। नहीं पढ़ा था, बहुत अच्छे, बहुत जबरदस्त, ठीक है, बहुत जबरदस्त। यही आता है, साबित तो नहीं आता, किताबों में यही मौजूद है। अल्हम्दो, तारीफ साबित है अल्लाह के लिए। क्या है? तारीफ साबित है अल्लाह के लिए। बस इतना रहने दो। अल्हम्दुलिल्लाही, तारीफ साबित है अल्लाह के लिए। तो अल्हम्दो मुब्तदा हुआ, लाम हरफे जार और लफ्ज़े जलाला, लफ्ज़े अल्लाह मजरूर, जार मजरूर से मिलकर मुताल्लिक हुआ साबित के। साबित क्या हुआ? साबित इसमें फाइल, साबित इसमें फाइल, जमीर उसमें हुआ की फाइल। ये याद रखना, जमीर जो बोल रहा हूं मैं, हर इसमें मफूल के अंदर जमीर होती है, ठीक है। तो जमीर इसमें हुआ की फाइल, तो साबित इसमें फाइल अपने फाइल और मुताल्लिक से मिलकर बतावीले मुफरद होकर खबर हुआ, बतावीले मुफरद होकर खबर हुआ। बस इतनी डेफ्थ है अरबिक तरकीब में, इसके अलावा अरबिक की तरकीब में कोई डेफ्थ है ही नहीं है। अगर ये समझ में आ गया तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और याद रखना, यही फंसाएगा आपको बहुत जगहों पे। अभी देखें एग्जाम्पल आने दे मुश्किल वाली। अब मुझे बस एक थोड़ा सा पूछना है गरीबों से, ठीक है, वो है कि इसमें फाइल क्या होता है, फाइल क्या होता है? किसी को पता है ये क्या है? इन दोनों का डिफरेंस सुना है कभी, या पता है, कभी जहन में आया है कि एक इसमें फाइल होता है, एक होता है फाइल? हाँ सर, फेल को करने वाले को फाइल कहते हैं, और इसमें फाइल तो वो सेगा से है जो फेल से ताल्लुक रखता है। फाइल, फाइलुन, फाइलान, फाइल। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, ठीक है। बाकी और बच्चे, उम्मीद करता हूं कि उनके जहन में ये क्वेश्चन आया होगा। अगर इससे पहले कभी इस पे गौर नहीं किया कि फाइल अलग चीज है, इसमें फाइल अलग चीज है, तो इस पे गौर कर लें, इसको समझने की कोशिश करना, क्योंकि ऑलरेडी हमारी क्लास लंबी हो गई है, आज इस पे बहस नहीं करेंगे, कभी इंशाल्लाह और समझने की कोशिश करेंगे इन चीजों को, या आएगा तो फाइल अलग चीज है, इसमें फाइल अलग चीज है, ठीक है। और इसको मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं, आप अपनी जिंदगी में इसको संवारिएगा, इसको समझिएगा ये है क्या, ठीक है। इसको सीखने की कोशिश कीजिएगा अगर नहीं पता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को मुझे पता है वो कंसेप्ट ये वाला क्लियर नहीं होता है कि फाइल क्या है और इसमें फाइल क्या है। एक टाइम पे हो सकता है कि कोई फाइल हो लेकिन वो इसमें मफऊल हो, क्या हो? इसमें मफऊल हो। एक टाइम पे ऐसा हो सकता है कि वो इसमें मफऊल हो लेकिन फाइल बन रहा हो। आप कहेंगे ये क्या क्या बक रहे हो आप? बहुत सारे बच्चों को जिनके नया है बिल्कुल नहीं समझ में आएगा। कल इंशाल्लाह अगर इसको आपने याद दिलाया मुझे तो इसको भी समझने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। चलिए खत्म करते हैं, अब कर दें खत्म। जी सर। लास्ट क्वेश्चन हो तो पूछ लें। साबित में हुआ फाइल होगा जी। एक बच्चे का क्वेश्चन है, सालिहा ने पूछा साबितन, साबितुन में जो है वो फाइल होगा, क्या होगा? फाइल होगा। तो आप क्लियर समझ लें, इसमें फाइल में होगा, इसमें फाइल में होगा फाइल, और इसमें मफऊल में होगा नाइब फाइल। ये लिख लें, ऐसा ही बिल्कुल पक्का है, रूल है ये। इसमें फाइल में होगा फाइल और इसमें मफऊल में होगा आपका नाइब फाइल, ठीक है, जो पोशीदा होगा, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का जुड़ने के लिए, शुक्र जजीला, जज़ाकुमुल्लाहु खैरन व अहसन जज़ा। कल कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक अगर इस किताब में नहीं हुआ तो किताब ही बदल देंगे, दूसरी किताब ले आएंगे, मतलब इसका दूसरा पार्ट लेके आएंगे और इंशाल्लाह आपके साथ जुड़ने की दोबारा कोशिश करेंगे। और हाँ, कल तो शायद मैंने सोचा था कि प्रैक्टिकल में जो एराब तरकीब पढ़ाना है, एराब पढ़ाना है, क्योंकि जामिया के बी अरबिक में एराब आता है, फिर उसके बाद एराब, अगर एराब समझ में ना आए तो ग्रामर पढ़ने का फायदा ही क्या है ना? अगर एराब पढ़ना ना आए तो ग्रामर पढ़ने का फायदा ही क्या है? तो इंशाल्लाह
कल हमारा कोई ग्रामर नहीं होगी, बल्कि प्रैक्टिकल, और प्रैक्टिकल से हम समझने की कोशिश करेंगे कवायद को और चीजों को, जहां जहां भी आपकी गलतियां होंगी। और बच्चे तैयार होके आना, सारे बच्चे, क्योंकि आपने गोया कि अनसीन पैसेज की तरह उसको लेना, आपने देखी तो नहीं है, लेकिन तैयार होके आना कि मैं इबारत पढ़ाऊंगा सारे एक एक का, ठीक है, ऊपर से लेके नीचे तक सभी का नाम लूंगा। अब ये मत समझना कि जब कल पढ़ाऊंगा तो आऊंगा ही नहीं, अरे तो फिर क्लास में ज्वाइन कीजिए, आप अपने पैसे वापस ले लीजिएगा मुझसे अगर आओगे नहीं, इस वजह से कि मैं पढ़वाऊंगा और आप क्लास ज्वाइन नहीं करोगे, तो फिर कोई फायदा नहीं है भाई साहब आपका यहाँ रहने का। ये हर चीज में होता है। देखो, इंग्लिश स्पीकिंग के 1000 कोर्स आप कर लो, जब तक बोलोगे नहीं आपसे बोलना नहीं आएगा। कितनी भी ग्रामर पढ़ लो, ठीक है, कितनी भी अरबी पढ़ लो, जब तक बोलोगे नहीं बोलना नहीं आएगा। जब तक इबारत पढ़ोगे नहीं तब तक इबारत आपको पढ़ना नहीं आएगी, ठीक है। निडर होना सीखिए, जो चीज आ रही है ना उसको एक्सप्रेस करने में बिल्कुल निडर हो जाइए। एक किताब है ना, शो योर वर्क, या इसी तरीके से कोई किताब है, जो तुम्हें आता है उसको शो करिए, अंदर मत रखिए। अंदर रखोगे तो कम होगा, अगर उसको बाहर लेके आओगे तब बढ़ेगा, ठीक है। बाहर लेके आओगे तब बढ़ेगा, अंदर रखोगे तो फिर अंदर से वो कम होता चला जाएगा, ठीक है। ये कंसेप्ट होता है। इल्म वो चीज है, अगर उसको खर्च नहीं करोगे तो कम होगा, खर्च करोगे तो बढ़ेगा। ये इसका अनोखा कंसेप्ट है इल्म का। इकोनॉमिक पूरी फेल हो जाती है इल्म के मसले में। समझ में आई बात? तो उम्मीद करता हूं कल सारे बच्चे ज्वाइन करेंगे जो भी यहाँ पर हैं, और मैं कोई इबारत लेके आऊंगा, आप उसको पढ़ रहे होंगे, और वहां से हम इंशाल्लाह चीजों को, या इसी तरीके से, और लेवल मैं बता देता हूं, लेवल जो जामिया में क्वेश्चन आते हैं बी अरबिक में, वही लेवल लेके आऊंगा। एक कोई कहानी ले आएंगे बगैर इराब की, और उसको फिर समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको कामयाब करे, और इसी तरीके से आप फलते फूलते रहें और इल्म सीखते रहें, और इल्म की तशनीगी को आप हमेशा अपनी किताबों से, अपनी जो भी रिसोर्सेज हैं उनसे बुझाते रहें। बारकल्लाहु फीकुम।